Starting with a new bit called as micro operations of instruction in COA. Okay. So what is micro operations? What is micro operations? Small amount of code. Probably it will focus. We are focusing on like assembly language code. We are not using assembly language program, not prescribed in your syllabus or of your engineering. Okay, but this type of code, इसका एक example हम लोग देखेंगे. We will scratch it on your book. It is called as micro instructions for the purpose of learning something about control signals, learning something about your states like T0, T1, T2 and so on. Okay. What do you mean by state? What do you mean by state? If I ask you, what is a state? Or please fast. State is also called as an event. Event is what? उस particular event में कितने instruction execute होते हैं? That's called as state. So यहाँ पे आपको कितने states? How many states you can see? I will call state as T0, T1, T2, T3. तो कितने states दिख रहे हैं? You are able to see 4 states. How many instructions are executed in state number 1? Like this is a program counter. What does program counter do? What does a program counter do? It points to what? The address of current instruction which is going to be executed. So program counter का जो भी डेटा है, program counter के ऊपर उस एड्रेस के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन है, that is being copied to your AR. AR is accumulator. What is accumulator? It is near to your CPU which performs your operations basically. Okay, ठीक है? That is called as state. सबसे पहले थोड़ा सा theory पढ़ेंगे. There can be multiple micro operations in a single instruction execution. इसका मीनिंग क्या है? एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑपरेशंस हैं, लाइक दिस. आई विल फोकस ऑन स्टेट T1, दैट इज स्टेट नंबर 2. यहाँ पे T0 से स्टार्ट हो रहा है, तो T1 इज सेकंड स्टेट. वहाँ पे मैंने लिखा है IR पॉइंट्स टू मेमोरी ऑफ AR, कॉमा PC टेंड्स टू PC plus 1. दैट मीन्स PC के अंदर क्या जाएगा? PC plus 1. PC इज प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर एक इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है. प्रोग्राम काउंटर इज पॉइंटिंग टू वन इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ वन इंस्ट्रक्शन. वो इंस्ट्रक्शन, पहली वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर क्या बोलेगा? बंद कर दो ऑपरेशन. ऐसा करेगा ना? नहीं. क्या बोलेगा वो? इट विल गो टू द न्यू इंस्ट्रक्शन, दैट इज सेकंड इंस्ट्रक्शन. और तब मैं बोलूंगा लाइक PC इज इक्वल टू PC plus 1, दैट इज इंस्ट्रक्शन नंबर 2. एक से इंक्रीमेंट हुआ ना, पहले PC था, दैट मीन्स योर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज देयर इन मेमोरी, लाइक दिस वन. मैंने कल डायग्राम में ड्रॉ किया था. इसका मीनिंग क्या है? कि इट इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन विच इज गोइंग टू बी कमिंग इन पाइपलाइन. समझ में आ रहा है? सो उसका मीनिंग है, हमको ये नहीं पढ़ना है. वी आर नॉट learning anything about assembly language program. We are here to understand the concept of state. What do you mean by state? तो अगर आपको किसी ने पूछा what do you mean by state, तो आप इतना ही बोलोगे कि एक state is comprising of multiple micro instructions. So बहुत सारे instruction हो सकते हैं. Instruction means क्या? The code. Code assembly language program में हो सकता है, कोड C लैंग्वेज में हो सकता है, कोड C++ में हो सकता है, कोड जावा में हो सकता है, कोड पाइथन में हो सकता है. बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं. समझ में आ रहा है? पायल कुठं आहे? कसलं आर्किटेक्चर? हार्वर्ड आर्किटेक्चर. पण इथं काय हार्वर्ड काय चालू नाही. हां का DSC चालू आहे, PME चालू आहे, CEP चालू आहे, काहीतरी वेगळं चालू असेल कन्फर्म नक्की. अरे वा, फार डेडिकेटेड आहे. मला वाटलं की काहीतरी दुसरं काहीतरी सबमिशन चालू आहे.
I appreciate. Okay, micro operations are executed on the value stored in the registers. क्या है इसका मीनिंग? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर थ्योरी मत पढ़ाओ, सर वो मिली और मूर पढ़ाओ, लेकिन थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाओ? ये समझ में आएगा आपको? It looks easy, but it is having a broad meaning. If they ask you anything, I will teach you. Don't worry. I'll take a time. Okay? टाइम निकालना है, ठीक है? जो एग्जाम्पल्स मैंने अब तक आपके करा के रखे हैं, थोड़ा सा पास्ट में जाओ and practice that examples. Many times it is possible that you may forget how to make the pair of K-map after due course of time. बराबर है? अभी दिवाली के जब रॉकेट ऊपर आएंगे तो क्या होगा? एट द टाइम यू विल बी अगेन फॉरगेटिंग दैट थिंग्स. समझ में आ रहा है? सो प्लीज मेक श्योर दैट. मी आताच सांगतो, आताच आमची मीटिंग झाली. आय वॉज लेट फॉर 10 minutes in your class. What actually sir told that the students who will be fail in prelim examination, they will be going for rigorous practices from college. तो जो स्टूडेंट्स अबाउट डिफॉल्टर है, जो स्टूडेंट्स अच्छे से परफॉर्म करेंगे, उनके लिए सबमिशन स्मूथ प्रोसेस से होगा. जो डिफॉल्टर है, जो अभी भी नहीं आ रहे हैं, जिनको मल्टीपल रिमाइंडर हम भेज रहे हैं, दो दे आर टर्निंग अप इन क्लास, एंड दोज हु हैव स्कोर्ड लेस इन प्रीलिम, दे विल बी गोइंग फॉर रिगोरस प्रैक्टिसेस. मेक श्योर फ्रॉम माय साइड इट इज श्योर. आप मेरा फीडबैक खराब दे दो, चलेगा मुझे, लेकिन मेक श्योर इफ यू फेल इन प्रीलिम एग्जामिनेशन फॉर टेल, फ्रॉम माय साइड इट विल बी रिगोरस प्रैक्टिसेस. समझ में आ रहा है? अब तक तो मैं थोड़ा हार्श नहीं था, लेकिन मेरे सब्जेक्ट के लिए मैं अभी आई विल बी इन हार्श मूड नाउ. सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग. दिवाली हर साल आती है, हाँ ठीक है. मैं भी किसी टाइम पे इंजीनियरिंग का था. देयर आर ऑल्सो प्रोफेसर्स इन फ्रंट ऑफ मी. आई वाज ऑल्सो लाइक, मुझे भी लगता है दिवाली एंजॉय करो आप, अच्छी बात है, यू गो एंजॉय, बट यू मेक श्योर दैट यू क्लियर योर प्रीलिम एग्जामिनेशंस इन गुड मार्क्स, विद गुड मार्क्स. 70 मार्क्स की प्रीलिम एग्जाम. समझ में आ रहा है? उसके पेपर में डिज़ाइन करता हूँ, थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा, कुछ रहेगा. आई विल बी मेकिंग सम कॉम्बिनेशंस. देखता हूँ मैं, उसको मुझे बहुत सटीक से सेट करना पड़ेगा प्रोबेबली. हाँ, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टडी एवरीथिंग. आई हैव गिवन एवरीथिंग ऑन नोट्स प्रोवाइडेड. इसको भी मैंने डाउनलोड करके रखा है. जितना है उतना ले लो, जितना पड़ा है आपके मशीन पे लगाओ. यहाँ पे पेन ड्राइव चालू करो. आपका ईमेल एड्रेस 24 आवर नेट है, नेट सर्विस है इसके ऊपर. आप आपके मेल को फॉरवर्ड करो, ठीक है? या मैं थोड़ी दिन के बाद मैं क्लासरूम पे अपलोड करूँगा. एक छोटा बाइट बाकी है मेरी तरफ से, इसकी वजह से मैं आपको क्लासरूम पे अपलोड नहीं कर रहा. आई एम नॉट मेकिंग, बट आज मैं थोड़ा सा अलग पढ़ाना. समथिंग इज रिमेनिंग, दैट इज व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग. क्लियर? एग्रीड? ओके, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल द थिंग्स. ठीक है? हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है. करेक्ट? एवरी सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट टू क्रैक. डिफिकल्ट टाइम निकालना पड़ेगा हर सब्जेक्ट. ठीक है? तो हर एक सब्जेक्ट की प्रीलिम एग्जामिनेशन, जैसे कि कोर सब्जेक्ट्स, डेल कोर सब्जेक्ट, डीएसए कोर सब्जेक्ट, ओपी और सीएन कोर सब्जेक्ट की एग्जाम रिगोरस प्रैक्टिस. हाँ प्लीज. हाँ ओके, आगे. सो व्हाट इज द रजिस्टर? बेसिकली इट स्टोर्स. हाँ, कल मेरा पेपर है, प्रिपरेशन कर रहे हो? यूनिट टेस्ट का पेपर है ना? कल है ना? कल ही कि परसों है? कल ही है, मालूम नहीं ना? पता है ना? ऐसे क्यों फेसेस बना रहे हो? डीएससी है ना? डीएससी. हाँ सॉरी, नॉट फेज में वो प्रीलिम था मेरा. ओनली फॉर डीएससी, नॉट फॉर यू. बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चल रही है. ठीक है? ओके. डीएससी प्लीज प्रिपेयर प्रॉपरली. इंटरनल मार्क्स से आपके, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो, के मैप सॉल्व करो. ठीक है? ओके, पेयरिंग प्रॉपर करो. के मैप में ओवरलैप चलता है क्या? के मैप में ओवरलैपिंग चलता है ना? 5 वेरिएबल का के मैप सॉल्व किया है हमने, सॉल्व किया. इसको अच्छे से आता है 5 वेरिएबल के मैप. माने ये अजून छान काय डिफिकल्टी आहे एकदा विचारून घ्या, मी तुमचं क्लिअर होतो. ज्यांना डिफिकल्टीज आहे तो सॉल्व करायला जेव्हा. ठीक आहे? हो, ठीक.
Okay, to describe the micro operations, we use register transfer language is called as RTR. RTL. Okay, in next semester we will be learning something about processor architecture. वहाँ पे हम लोग मेजरली फोकस करेंगे RTL के ऊपर. RTL is register transfer language. What do you mean by register transfer language? Yes. What do you mean by register transfer language? एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हम लोग जब डेटा पास करते हैं, that is called as the specific language is being used called as RTL. इसके ऊपर बाद में देखेंगे. Don't think about that. इससे क्या समझ में आया? Sir, we are learning something about micro operations. What is micro operations? Sir, बहुत सारे छोटे-छोटे instructions एक स्टेट के अंदर हो सकती है. हमको स्टेट मालूम करना. We are here to learn something about state. So what is state? Like आप एग्जाम में सबसे पहले आपका हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तब आपको आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स T0, T1, T2, T3 में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और वो अलग अलग स्टेट्स. तो कैन आई से लाइक T0 में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, T1 में आया और इसी का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, T2 में इतने सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है और T3 में ये हो रहा है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? सी the states are divided into three types basically. कैसा? fetch, decode and execute. हमने पहले पढ़ा था. What do you mean by fetch? To accept the data. What do you mean by decode? To decrypt it. Encrypt, decrypt. इसको समझ के लेना. And execute is हमको रिजल्ट देखना है. करेक्ट है? So आपको क्या करना है कि fetch, decode and execute आपको एक्सप्लेन करना है. In terms of what? In terms of states. T0, T1, T2 and T3. तो यहाँ पे opcode है, operand है और यहाँ पे mode है. The mode which we are setting. You all know about opcode. What is opcode? Plus A plus B equal to C. A B operand plus is opcode. Opcode that means कौन सा ऑपरेशन मुझे दो ऑपरेंड्स के ऊपर करना है. प्लीज भूलना नहीं है, प्लीज प्लीज. वेरी नेसेसरी थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्राइमरी थिंग्स टू अंडरस्टैंड. ऑपरेंड ऑपकोड. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मोड में सेट करने वाला. मोड हम लोग बाद में देखेंगे. अभी मोड नहीं करना है हमको पढ़ाई. जस्ट सी दैट द इंस्ट्रक्शन इज इन सम मोड. सम मोड मींस लाइक इट इज इन लाइक अ डिकोड. वो डिकोड हो रही है, वो डिकोड का प्रोसेस अंदर ही अंदर चल रहा है. दैट्स ऑल. ठीक है, आगे जाओ. तो क्या समझ में आया? देयर आर माइक्रो ऑपरेशंस with the help of registers. Where are registers? Where are registers? Can I call AR as a register? Accumulator? Can I call PC as a register? Program counter? Yes. Can I call IR instruction register as a register? तो यहाँ पर registers. So are called as micro operations. आगे जाओ. Easy है? Okay. Here there are multiple of micro operations are executed and CPU is generating the control signals. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Operations हो रहे हैं, instruction execute हो रहे हैं और CPU क्या कर रहा है? Control signal generate कर रहा है. क्यों? मुझे कोई तो भी डिवाइस चलाना है, मुझे आउटपुट पे कुछ देखना है. For the control signals. ठीक है? In a hardwired operation, sequential circuits are used as logic gates, flip-flop, etc. यहाँ पे बहुत सारे flip-flop और logic gate यूज होते हैं in hardwired sequential circuit. अभी hardwired समझ में नहीं आएगा. We'll be focusing on the next video. Here the memory used in the microprogram control is the CPU. Here the memory used is microprogram control CPU. It's microprogram because we are using micro instruction. आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो माइक्रो है, इसकी वजह से हम लोग माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट या सीपीयू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट हार्डवायर्ड और हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट इन COA, दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. ठीक है? अभी देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर डेफिनेट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. और यहाँ से ये नहीं तो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, दोनों में से क्वेश्चन आएगा, या कंपैरिजन बिटवीन हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट या डिफरेंस बिटवीन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट या प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ऐसा कुछ आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है. सो ये कंपल्सरी आएगा. ट्राई अंडरस्टैंड दिस. द कंट्रोल यूनिट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल टू परफॉर्म माइक्रो ऑपरेशंस इन सीपीयू. एग्री? इजी? कुछ डिफिकल्ट? नो. हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड्स कंट्रोल सिग्नल बाय द हार्डवेयर. ओके, अभी क्या है इसका मीनिंग? क्या है मीनिंग ऑफ सेकंड लाइन? हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट जनरेट्स सम कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम हार्डवेयर. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर? जहाँ पे आपका मदरबोर्ड या आपकी सिस्टम माउंटेड है, जहाँ से मुझे एक्चुअली
बसेस दिखते हैं, सिस्टम बस, आई कैन सी दैट सिस्टम बस इन टर्म्स ऑफ वायर्स. ओके, ठीक है. देन इन जनरल द 3 टाइप्स ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट्स आर अवेलेबल. हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट 3 टाइप के होते हैं. सो सबसे पहला वाला टाइप जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टेट टेबल मेथड और ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. कौन सा है? एक बार हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का सबसे पहला टाइप इज कॉल्ड एज स्टेट टेबल मेथड. स्टेट टेबल उतना ही लिखो बस. लिखा? डन. I will ask you one basic question. What is control unit? What is control unit? क्वेश्चन समझ में आया? क्या करता है कंट्रोल यूनिट? इजी. इट गिव्स कंट्रोल सिग्नल. तो उसी कंट्रोल यूनिट का एक टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या? यस, इतना याद रखना. दिस इज रिलेटेड टू योर कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट के बहुत सारे डायग्राम हमने देखे. बेसिक कंट्रोल यूनिट पढ़ा है. वो न्यूमन आर्किटेक्चर में भी कंट्रोल यूनिट था. हार्वर्ड आर्किटेक्चर में भी कंट्रोल यूनिट था. अभी भी हम लोग कंट्रोल यूनिट के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं जिसका टाइप है आगे जाके इज कॉल्ड एज हार्डवायर्ड कंट्रोल. उसमें का सबसे पहला टाइप कॉल्ड एज व्हाट? स्टेट टेबल मेथड. क्या होता है देखो प्लीज. आई विल रीड लाइन बाय लाइन. आई विल एक्सप्लेन द फिगर टू यू. This is the most basic method of hardwired control unit. सबसे basic method है. Here behavior of the control unit is represented in the form of table called as state table. क्या समझ में आया second line से? Please पढ़ो इसको. Second line से क्या समझ में आया? What do you understand by second line? Second line is very very important. क्या बोलता है second line? The behavior of the control unit is being represented in terms of what? State table. Very state table. तो ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट को मैंने क्या किया? इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ स्टेट्स एंड सिस्टम्स. समझ में आया? सो कंट्रोल यूनिट के अंदर गए, उसमें हमको दिखा एक टाइप दैट इज कॉल्ड एज हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, जिसमें मुझे दिख रहा है कि द बिहेवियर ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ. कंट्रोल यूनिट ऐसा मैप किया है जहां से मुझे क्या दिखता है? स्टेट टेबल दिखता है. I can see a state table in control unit basically. उसका पार्ट है. Third, the rows represented state table and the columns represented the instruction. जो आपके rows है, rows T1, T2, T3 are called as what? T states. Are called as states. देखो states T1, T2, T3 और आपके जो column है, the column this is I1, I2, I3 are called as what? Instructions. समझ में आया? तो ऊपर जो मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले वो क्या था? वहाँ पे भी स्टेट्स थे और वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन थे. सो सेम आई हैव मैप्ड इन द टर्म्स ऑफ स्टेट टेबल और एज कंट्रोल यूनिट. क्लियर एकदम? सो क्या समझ में आया? सो द कंट्रोल यूनिट इज हैविंग अ टाइप कॉल्ड एज हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, जिसमें दो पार्ट है, एक तो रो और एक कॉलम. रो इज नोन एज स्टेट्स एंड कॉलम इज नोन एज इंस्ट्रक्शंस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. उस स्टेट की वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. तो आप मुझे बताओ कि अगर T1 नाम का स्टेट एग्जीक्यूट हुआ तो उसका मीनिंग क्या होगा? कैन आई से C11, C12 up to C1n is executed? Is executed? That means this number of instructions are executed. उसमें कितने भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं. If I say T2 state is executed, that means this instruction is executed 2,1, 2,2 and 2,n. Clear है? Okay? That means first row, first column, first row, second column, first row, nth column. यहाँ पे second row, first column, second row, second column, and going on. Third row, third column, third row, first column, third row, second column, and on. ये वैसे ही आपका CM. M means क्या है? What? Rows. And this is column. चलता है.
इसका मीनिंग क्या है कि सर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आ सकते और मेरे पास बहुत सारे स्टेट्स है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उस स्टेट के अंदर एग्जीक्यूट हो सकते उस टाइम पे। क्लियर? एग्रीड? अंडरस्टूड दिस? स्टेट टेबल समझ में आया? आगे जाओ, कुछ क्वेरीज? खत्म हो गया एक टाइप, इजी। ओके, द स्टेट्स आर फैब्रिकेटेड बाय द हार्डवायर सर्किट। जो स्टेट्स है फैब्रिकेटेड मींस वो एक्चुअल हमको दिखते हैं, ऐसे फैब्रिकेटेड। ओके, T1 are states and C11 are the control signals। क्यों? Why it is control signal? Basically सर वो इंस्ट्रक्शन है, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी दैट मींस उस इंस्ट्रक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि CPU wants some data from memory या CPU will push some data into memory, ऐसे भी हो सकता है। सो वो क्या है? कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल अगर CPU से मेमोरी गया दैट मींस यहाँ से वहाँ जाना है, अगर वो सिग्नल यहाँ से यहाँ आया दैट मींस वो डेटा मेमोरी से वापस CPU में आने वाला है। दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल सिग्नल। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तब कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं, याद रखना, हैंड इन हैंड, इट गो पैरेलल। क्लियर? ओके, इसी कुछ एडवांटेजेस है इस यूनिट का। व्हाट आर द एडवांटेजेस? इट इज अ सिंपल मेथड एंड इट इज आइडियल फॉर वेरी स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट। अगर छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन मेरे पास है तो ये आइडियल है, टेक्निक आइडियल है, अदरवाइज नॉट। Okay, and the disadvantage is for the large instruction set, hardwired circuit will be very complicated and very costly, complex होगा, क्योंकि सर वो हार्डवेयर है, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार्डवेयर बढ़ाना पड़ेगा, हार्डवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। एक ही हार्डवेयर पे मैं मशीन नहीं चला सकता। In olden machines they were having some restrictions. Why we are going on generation to generations? Because every machine is having some good processing powers. That is why we are not using old machines. They are having less processing power, less memory. तो अभी आगे हम लोग क्यों जा रहे हैं? It is because they are having more and more power. So this was an old powered machine we can say, और control unit. Clear एकदम? क्या समझ में आया? Hardwired control unit में क्या समझ में आया? State table में क्या समझ में आया? State table hardwired control unit में क्या समझ में आया? पहले टाइप। Sir, it is in form of what? Rows and columns. What is rows? So rows are states, columns are instructions. The states are represented in form of T0, T1, T2, T3 and so on. And when the instruction is being executed, it is in form of control signals called as C into bracket 1, 1. Clear? Agreed? Easy? आगे जाओ और उसके कुछ advantages and disadvantages हैं. Okay? Then second method. लिखो, delay element method of hardwired control unit. It's called as delay element method of hardwired control unit. Delay element method. Second type of hardwired control unit. पहला देखा हमने state table, दूसरा delay element method of hardwired control unit. क्या समझ में आया आपको इस फिगर को देखो? क्या दिख रहा है आपको आपके सामने? A flow chart. What do you mean by flow chart? सर मालूम नहीं मुझे, स्कूल में पढ़ा था मैंने। I've seen something about flow chart. A graphical representation of the instructions or algorithm which is going to be executed. ठीक है? क्या समझ में आया इसमें? देखो, कौन बता पाएगा मुझे? What will happen? See, here the behavior of the control unit is represented in form of what? पहले वाला क्या था? स्टेट टेबल। अभी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के कुछ रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। उसका पहला तरीका हमने पढ़ा स्टेट टेबल, दूसरा तरीका है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वो चार्ट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखो पॉसिबिलिटीज, ईच स्टेप ऑफ द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स अ कंट्रोल सिग्नल टू बी प्रोड्यूस्ड। पहले वाले स्टेट टेबल में कंट्रोल सिग्नल कब प्रोड्यूस हो रहे थे? कब हो रहे थे बताओ प्लीज। देखो ना, कंट्रोल सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड, दैट मींस जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तब कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ। तो ये बिट जब एग्जीक्यूट हुआ तब कंट्रोल सिग्नल ऑन हुआ। दिस बिट इज एग्जीक्यूटेड, कंट्रोल सिग्नल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, सो ऑन अप टू लास्ट। क्लियर है? हर जगह पे कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे। Okay, so what does this behavior tells you?
each step of the flow chart represents a control signal to be produced. यहाँ पे मुझे बताओ कंट्रोल सिग्नल कहाँ पे जनरेट होगा? लाइन पढ़ो और फ्लो चार्ट देखो. डोंट सी द फ्लो चार्ट ऑफ दिस साइड. ये देखना नहीं है, ये मैंने अब तक आपको पढ़ाया नहीं है, सिर्फ आपको ये पढ़ना है. यहाँ पे मुझे बताओ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं? दे आर सिंबलाइज्ड एज व्हाट? C1. ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल. क्या मीनिंग है इसका? जब सर पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तब कंट्रोल सिग्नल नंबर 1 जनरेट हुआ. करेक्ट है? सेम लाइक योर स्टेट टेबल. जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है. यहाँ पे क्या हुआ? सर मेरी सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और कंट्रोल सिग्नल नंबर 2 इनिशिएट हुआ, जनरेट हुआ. स्टेट this one is an what? We are taking some decisions over here. तो decision के ऊपर we are deciding which control signal is being generated. That is control signal number 3. और यहाँ पे 4. ओके, दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा ना? करेक्ट है ना? yes या no? हाँ या ना? करेक्ट है? And after that one that is given as C3, C4 and last one is C5. That is your last instruction. तो क्या होगा? C5 will be executed, the control signal will be generated when the last instruction will be executed and afterward it will stop. It's called as loop chart. Okay? अभी देखो. Third line is very very important. D flip flop are used to insert the delays in between consecutive control signals. आपको control signal कहाँ पे दिख रहे हैं? सर मुझे यहाँ पे दिख रहा है. सर मुझे यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है? We are going to insert D flip flop are used to insert the delay. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? There is no delay. अगर मुझे डिले देखना है, डिले मीन्स क्या है कि अगर मुझे देखना है अभी, अगर if I go with the normal processing of this program, what will happen? मुझे अचानक से क्या दिखेगा? आउटपुट दिखेगा. करेक्ट है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपके लिए नहीं रुकेंगे. इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 1 2 3 4 5 सिक्वेंशियली. करेक्ट है? अगर मुझे देखना है कि इंस्ट्रक्शन नंबर 1 का आउटपुट क्या है तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखेगा. फॉर दैट वन वी आर इंसर्टिंग सम काइंड ऑफ डिले बिटवीन व्हाट? C1 एंड के अंदर मैंने क्या इंसर्ट किया? डिले. डिले को कौन रिप्रेजेंट करता है? D नाम का फ्लिप फ्लॉप. समझ में आया? तो फ्लिप फ्लॉप में हमने डिले डाला था, हमने SR to JK कन्वर्ट किया था. हमको आउटपुट कुछ अलग चाहिए था. we were expecting some different output which was not there in SR, so we have generated JK flip flop. उसके बाद मास्टर स्लेव JK flip flop आया तो हमने अलग अलग आउटपुट देखे. तो दैट मीन्स क्या है? हमने फ्लिप फ्लॉप ऐसे चेंजेस किए. दैट मीन्स आई कैन गेट द अप्रोप्रिएट आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट जो किससे होगा? पॉसिबल D फ्लिप फ्लॉप से होगा. कळतंय का काय म्हणतो? झोपा लागतात का? हां, बस चक्कर येऊन पडायचं बाकी आहे आता. हां, प्लीज want water? पानी पिऊन घ्या प्लीज. It doesn't look good. I think it is embarrassed. हां, काय समजत नाही. होऊ शकतं दुपारच्या वेळेस. हां, पुण्यातली दुपारची वेळ आहे 2 ते 4 झोपायची वेळ असते पुण्यामध्ये. ओके, बोला. हां प्लीज, या स्पेसमध्ये आहे. Yes, what do you understand by this? काय बोललो मी? What is the difference between state table and this type of delay element method? What is the difference? सर तिकडे पण कंट्रोल सिग्नल होते, इथे पण कंट्रोल सिग्नल आहे. तिकडचे कंट्रोल सिग्नल कसे होते? They were in form of state tables. यहाँ पे सर हमने क्या किया? सबसे पहले सर मैंने फ्लो चार्ट को डिजाइन किया. फ्लो चार्ट को डिजाइन करने के बाद जहाँ जहाँ कंट्रोल सिग्नल आएंगे उन दोनों के बीच में मैंने एक डिले डाल दिया जिसका नाम है डी फ्लिप फ्लॉप. That's all. It's easy. I'm making for you. Okay, अभी क्या हुआ? What is the change in between this and this? ऐसा कुछ नहीं. यहाँ पे D1, यहाँ पे D2 और यहाँ पे मैंने D3 डाल दिया. करेक्ट है? तो अभी क्या हो रहा है? सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर एक्यूमुलेटर में जाएगा. कंट्रोल सिग्नल नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ. सो सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी. उसके बाद क्या होगा? X देखा जाएगा. अगर X इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन विल बी डन. अगर X इक्वल टू 1 आया, addition will be done. और नीचे क्या होगा? The cumulative result will be there and it will show you the value of that part. Okay, that means OR.
यहाँ पे क्या होगा, एंड, यहाँ पे एंड और यहाँ पे और। सेम थिंग इज बीन डन। सी यहाँ पे वही है। सो जहां जहां कंट्रोल सिग्नल है उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, डिले, दैट इज कॉल्ड एज D1, D2, D3। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो, इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0 दैट मींस x बार, उसका मीनिंग सेम है, x इक्वल टू 0 या x बार, आप कुछ भी लिख सकते हो। तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, वी आर यूजिंग एंड गेट ओवर हियर, ओके, बिकॉज़ ये भी सिग्नल आने वाला है और x इज इक्वल टू 0 भी है, करेक्ट है। दो लाइंस मैंने यहाँ पे दिखाया है, व्हाट विल मैं एंड बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। ये तो आने वाला है ना ऊपर से कंपलसरी, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ना, क्या अगर x इक्वल टू 0 है और इसका कुछ रिजल्ट मैच हो रहा है, इट विल गो इनटू लेफ्ट पार्ट, ओके। तो क्या होगा, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड एंड दिस विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर ये ट्रू है और x इक्वल टू 1 है, दिस इज सिंपल, x इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा, इट विल परफॉर्म व्हिच ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, ओके। दोनों का रिजल्ट आया, नीचे आया, और में इधर सब्ट्रैक्शन होगा, इधर एडिशन होगा, दोनों नहीं होंगे ना। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या, इधर सब्ट्रैक्शन दिखेगा या एडिशन का दिखेगा, करेक्ट है। दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग और ओवर हियर, और दोनों में से एक, करेक्ट है, और नीचे एंड, बस। तो अभी क्या किया मैंने, जहां जहां कंट्रोल सिग्नल था वहां वहां मैंने क्या डाल दिया, आई पुट अ डिले, दिस डिले D3, बस चेंज करो फ्लो चार्ट, ड्रॉ करो इसको फास्ट आपकी बुक में। दिस इज कॉल्ड एज डिले एलिमेंट मेथड ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल। काय आता दोन्ही पण काढतात, एक्झॅक्ट दोन्ही पण काढतात ना, दुसरी शेअर करणार आहे ते लिहिल्याने काय होईल, झोपा उडते थोडंसं, म्हणून मी लिहायला सांगतो, ते मुद्दाम लिहायला सांगतो। इतना भी बोर नहीं पढ़ाता हूँ मैं, बोर नहीं, बोर है ना, यही बोर होते। अरे मग कसं करणार तुम्ही, प्रोसेसर आर्किटेक्चर में तर काय मागे जाऊन बसणार काय, प्रोसेसर आर्किटेक्चर तो हा पूर्ण थिअरॉटिकल असणार आहे, असं कन्सेप्च्युअल असणार आहे। मग सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग मध्ये काय करणार तुम्ही, हां, मग एकमेकाला पकडायला लागेल। बरं झालं मग मी डेल घेतला। आशिता कळलं नक्की, इथे आपण फ्लो चार्ट नाही शिकलोय, काय आपण काय शिकलोय, फ्लो चार्ट शिकलोय का, आपण काय शिकलोय, स्टेट्स आणि कंट्रोल सिग्नल्स। इथे कंट्रोल सिग्नल आहे ते आपण काय केलंय, डिले एलिमेंट मेथड केलेलं आहे, इम्प्लिमेंट, दॅट मीन्स आपण डी फ्लिप फ्लॉप यूज करून डिले इन्सर्ट केलेला आहे, तो इन्सर्टेड अ डिले इन टू कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन टू इन्स्ट्रक्शंस, आय मीन टू से, कळलं का काय म्हणतोय मी, देयर इज अ डिले बिटवीन टू इन्स्ट्रक्शंस, असं मला म्हणायचं है, आई वुड से दैट, ओके। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अगर फ्लिप फ्लॉप है तो क्या आता है फ्लिप फ्लॉप के साथ, हमेशा क्या आता है, क्लॉक, फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देना पड़ता है हमको, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कॉमन क्लॉक ही दिया है। क्लॉक इज बीइंग गिवन टू व्हाट, डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, डी फ्लिप फ्लॉप, आ रहा है समझ में, डी स्टैंड्स फॉर डिले। आप एग्जामिनर को अच्छी से एक्सप्लेन करके बताओ हर एक चीज, व्हाट वी हैव डन, व्हाट प्रोविजन दे हैव डन। अगर फ्लिप फ्लॉप है तो वहाँ पे क्लॉक भी दिखाना है, अगर आपने क्लॉक नहीं दिखाया तो क्या होगा, he will cut down your marks। आप बोल रहे हो ना वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो आप, VCC एंड ग्राउंड, क्यों ऐसा, व्हाई इट इज VCC एंड ग्राउंड, यहाँ पे दिखाया मैंने स्टार्ट, यहाँ पे दिखाया मैंने एंड, यहाँ पे VCC, यहाँ पे ग्राउंड, ऐसा क्यों सर, द फ्लिप फ्लो चार्ट इज मैप टू अ सर्किट, फ्लो चार्ट को मैंने उठाया और एक सर्किट मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, इंप्लीमेंट किया सर्किट, तो वहाँ पे VCC है और यहाँ पे ग्राउंड है, स्टार्ट है तो VCC है, एंड इनिशिएटेड है ना, एंड ग्राउंड इज खत्म हो गया, इट इज ग्राउंडेड, दैट मींस कंप्लीट सर्किट इज कंप्लीट, इट इज ओवर एग्जीक्यूटेड, ऐसा मीनिंग है उसका। समझ में आया, क्लियर, जाओ आगे, टाइम कितनी बाकी है,
इसकी कुछ रूल है देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, रूल नंबर 1, डिले एलिमेंट में रूल नंबर 1 क्या लगाया मैंने, देखो पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या किया मैंने, सर द कंट्रोल सिग्नल्स के बीच में मैंने क्या लगा दिया, बस रूल नंबर 1 इजी। रूल नंबर 2 में क्या किया, द लाइंस आर रिप्रेजेंटेड विद व्हाट, मैंने यहाँ पे एंड एंड और लगा दिया, जहाँ एंड एंड और था। आगे जाके मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट इंसर्टेड, यहाँ पे क्या था डिसीजन मेकिंग था, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, नीचे क्या लगा दिया मैंने, और लगा दिया। दिस कॉल्ड एज रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। बस इसको तोड़ो और एक्सपेंड करो, बस ऊपर वाले फ्लो चार्ट। ओके, क्या बोलता है, सी हियर आउट ऑफ ऑल डी फ्लिप फ्लॉप ओनली वन विल बी एक्टिव। क्या समझ में आया, सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट होने वाले क्या नहीं, क्यों, ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जानिए। तो काय म्हणतोय, काय म्हणतो कळलं का, एका वेळेला एकच फ्लिप फ्लॉप आउटपुट किंवा ऍक्टिव्ह असेल, बाकीचे नसतील का, कारण सर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होत चाललेलं आहे, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा है ना, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, तो क्या होगा, दैट रिस्पेक्टिव डिले विल बी ऑन। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 फिर वो आएगा D2 के पास, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 फिर आएगा वो D3 के पास, D4 के पास, लाइक दिस वन। तो धीरे धीरे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे वैसे डी फ्लिप फ्लॉप आपको आउटपुट दिखाएगा या डिले इंसर्ट करेगा इन बिटवीन, करेक्ट है। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वन हॉट मेथड। तो इन एग्जामिनेशन दे विल आस्क यू क्वेश्चन, एक्सप्लेन वन हॉट मेथड। तो क्या है इसका आंसर, यही लिखना है, करेक्ट है। वन हॉट मेथड क्यों, एक टाइम पे एक ही फ्लिप फ्लॉप ऑन होता, ओके ठीक है। We need to apply simple 3 rules to convert the flowchart into hardwired control signals. कौन से तीन रूल, these 3 rules we have here. क्या advantages है, it decreases advantages as compared to what, state table क्या था, it decreases the complexity of circuit to control unit, correct है, complexity reduce हो गई अभी, flip flop है यहाँ पे। For the common controls we don't need the separate control signals. Disadvantages क्या है इसके, इसके भी कुछ disadvantage हो सकते हैं, क्या है इसका, for large instruction set number of D flip flop will be more, which will be increase the cost and size of the circuit. बड़े बड़े सर्किट के लिए क्या होगा, बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या होगा, बहुत डी फ्लिप फ्लॉप डिप्लॉय करोगे आप, वो पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से वी आर थर्ड टाइप called as sequence counter method of hardwired control unit, third type called as sequence counter method of hardwired control unit। इसके बाद इसका क्या एड्रेस लेता हूँ, अगर सर आते हैं ठीक, मैं थोड़ा सा पढ़ा दो चलेगा, या कल भी पढ़ा दो कंटिन्यू पार्ट चलेगा। लास्ट टाइप इज रिमेनिंग फ्रॉम हार्डवेयर कंट्रोल, वेरी इजी, दिखता है बड़ा।